ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ 24x7 ਪੰਜਾਬ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਜਨ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਮੰਤਰੀ ਰਣਵੀਰ ਗੰਗਵਾ ਨੇ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਇੱਕ ਸਮੀਖਿਆ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਜਨ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਰਣਵੀਰ ਗੰਗਵਾ ਨੇ ਅੱਜ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸੈਕਟਰ 1 ਸਥਿਤ ਹੈੱਡ ਬਿਸ਼ਪ ਵਿਖੇ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਜਨ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਰਾਜ ਦੇ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਮੀਖਿਆ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੰਗਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਮੌਸਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਡੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤਰਜੀਹ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਨਾਗਰਿਕ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਕਿੱਲਤ ਤੋਂ ਪੀੜਿਤ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਫੀਲਡ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਿੰਚਾਈ, ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਜਨ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਣੀ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਜੀਵਨ ਰੇਖਾ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸਾਡੀਆਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਬਚਾਓ ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ ਬੱਚਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਰੈਲੀਆਂ ਅਤੇ ਨੁੱਕੜ ਨਾਟਕ ਆਯੋਜਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਕੰਧਾਂ, ਥੰਮਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਪਾਣੀ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਵਾਲੇ ਫਲੈਕਸ ਬੋਰਡ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਾਣੀ ਹੀ ਜੀਵਨ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਜੀਵਨ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਬਚਾਓ ਦੇਸ਼ ਬਚਾਓ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੰਗਵਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਲਈ PHED ਪੋਰਟਲ ਤੇ ਅਰਜ਼ੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਦੇ 12 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਾਣੀ ਦਾ ਟੈਂਕਰ ਭੇਜੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਾਣੀ ਕੱਢਣ ਵਾਲੇ ਕਨੈਕਸ਼ਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਹੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਵਿੱਚ ਸਮੱਸਿਆ ਆਏਗੀ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਪੰਪਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣਗੇ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੰਗਵਾ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਨਮੂਨਾ ਫੇਲ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਰੰਤ ਦੁਬਾਰਾ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਣੀ ਸਪਲਾਈ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੁਰੰਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਨਮੂਨਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਫੋਨ ਕਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੇ ਆदेश ਦਿੱਤੇ ਹਨ। आज हमारी पब्लिक हेल्थ की मीटिंग थी, जिसके अंदर हमारे AC साहब और हमारे दोनों चीफ इंजीनियर SC साहब और एक्सियन यहाँ बुलाए हुए थे और हमारे JE और SDO जो है वो वर्चुअल माध्यम से जुड़े हुए थे। अभी क्योंकि गर्मी का समय आ गया है, गर्मी के समय के अंदर पानी की प्रदेश के अंदर कहीं भी कोई सप्लाई में कोई किल्लत, कोई परेशानी ना हो, इसके लिए जो आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए हैं और क्या क्या हमारी डिपार्टमेंट की तैयारी है वो फीडबैक अधिकारियों से लिया गया है। और हम इन गर्मियों के सीज़न के अंदर ठीक तरीके से पानी लोगों को पहुंचा सके, ये इसके पुख्ता प्रबंध हमारे किए हुए हैं और जो जो कोई कमियां थी उसको और आवश्यक दिशा निर्देश दे दिए गए हैं ताकि कोई भी किल्लत परेशानी पाने की जो ना आए। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी का नारा है कि हर घर में नल और नल में स्वच्छ जल, और हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय नायब सैनी जी के नेतृत्व के अंदर हमारा डिपार्टमेंट इस बात को साकार करने में लगा हुआ है कि हर जगह पे ठीक तरीके से हमारा पानी पहुंचे, जो हमारे जो काम चल रहे हैं वो भी स्पीडली हो, क्योंकि जहाँ कहीं पाइपलाइनों का, कहीं बूस्टिंग स्टेशंस का, कहीं वाटर वर्क्स बनाने का और महाग्राम योजना का भी हमारे जो काम जो है बहुत से चले हुए हैं, वो भी क्वालिटी के हों, अच्छे हों, ये सुनिश्चित करने के लिए अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए गए हैं। और पानी के लिए भी हमने अधिकारियों को कहा है कि इरिगेशन DC लेवल पर भी और हमारे जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जो इरिगेशन के अधिकारी हैं या जो बिजली विभाग के अधिकारी हैं उनसे भी कोऑर्डिनेट करके, ताकि बिजली ठीक तरीके से सही समय पर मिले। और पानी क्योंकि गर्मियों के अंदर ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, नहर के अंदर बंदी भी आती है, उस समय के अंदर हमारा ठीक तरीके से स्टोरेज करके और लोगों को पहुंचाने का काम करें। जहाँ जहाँ हम ट्यूबवेलों से सप्लाई करते हैं, जहाँ जहाँ कोई ट्यूबवेल हमें नए लगाने की जरूरत है वो नए लगा रहे हैं, जहाँ जहाँ भी हमारे कोई ट्यूबवेल खराब है वो भी तमाम हमारे जो है 30/5 से पहले ठीक हो जाएंगे, ताकि हम प्रॉपर तरीके से हम पानी दे सकें। सर, छछरौली के दसोरा गांव में जो जन स्वास्थ्य केंद्र ट्यूबवेल था, उसका दूषित पानी पीकर 20 लोग बीमार हुए थे। इसको लेकर एक रिपोर्ट भी आई।
तो ऐसे में उस पर क्या कार्रवाई की जा रही है जहाँ दूषित पानी है खासकर? देखिए, हमने सभी अधिकारियों को ये दिशा निर्देश दे दिए हैं कि जो ट्यूबवेल लगाते हैं, जो हमारा पानी है, उसका समय समय के ऊपर सैंपल लेकर के और उसके जांच करवाने का काम करें। कहीं कोई अगर उसमें जांच में कोई कमी पाई जाती है तो फिर उसके अंदर सुधार करने के लिए उस ट्यूबवेल को बंद किया है कि इस बात में तेजी लाने का काम करें। ठीक तरीके से जहाँ जहाँ पानी नहीं पहुँच पाता है वहाँ टैंकरों से भी पहुँचाने का काम जो है करें, और ताकि प्रॉपर तरीके से पानी पहुँच के कोई दिक्कत परेशानी हरियाणा के किसी भी क्षेत्र में कहीं भी कोई कमी ना आए, ये सुनिश्चित करने का काम हमारा डिपार्टमेंट कर रहा है। और मैं समझता हूँ कि हम ठीक तरीके से पानी पहुँचा करके इस गर्मियों में कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो सर अवैध कनेक्शन जो है उनको लेकर क्या दिशा निर्देश दिए गए हैं? उसके लिए भी हमने कहा है कि एक तो अवैध कनेक्शन होते हैं जहाँ नीचे लोग उसके अंदर कनेक्शन करके अपने सब्जी तक मोड़ने का काम करते हैं, जहाँ थोड़ा ऊंचा पड़ता है वहाँ पे पानी जाता नहीं है, उसके लिए वो अवैध कनेक्शन बंद कराने के लिए कहा है। और कोई बंद नहीं करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई करने का भी क्या दिया गया है। हमने इस बात के भी हमने कहा है कि जनप्रतिनिधियों से मिलकर के, चाहे गाँव के अंदर पंचायतों से, जिला परिषद के मेंबरों से, बीडीसी मेंबरों से, और लोगों को अवेयर करने का काम करें कि हम जल बचाने का काम करें, पानी को व्यर्थ ना जाए। कोई भी अगर पानी खाली टैंकी वैसे ही छोड़ देता है गलियों के अंदर तो फिर उसको नोटिस देने का काम भी करें, उसको विभाग की तरफ से नोटिस दिया जाएगा ताकि पानी व्यर्थ जो है वो ना जाए। हमारी योजना चल रही है कि हम जो बड़े बड़े हमारे गांव हैं वहाँ हमने महाग्राम योजना जो है वो शुरू कर की है, जिसके अंदर तो 10,000 की आबादी या उससे जो ज़्यादा आबादी है उसके अंदर हम सारी शहरों वाली सुविधाएं हम देने का काम कर रहे हैं। वहाँ हम 135 लीटर पर कैपिटा के हिसाब से पानी देते हैं, सीवरेज का प्रबंध करते हैं, और वहाँ वो सारी सुविधाएं ताकि वो लोग शहर की तरफ पलायन ना करें, उनको सारी सुविधाएं गांव के अंदर ही मिल जाए। हमारे टोटल 148 गांव ऐसे हमने चिन्हित किए हैं, और इस साल में अभी जैसे हमारे डिपार्टमेंट का मानना है कि हमें 12 गांव ऐसे हैं जिसमें हमारा कंप्लीट कार्य हो गया, और जो उसका जो ट्रीटमेंट करके और पानी को रीयूज करने का भी काम करेंगे। खेती के अंदर कोई पेड़ पौधों के अंदर उनको रीयूज करने का भी काम जो है हम करेंगे। तो इस तरीके की योजनाएं हमारी जो है बहुत ही दुखद, बहुत ही दुखी करने वाली, व्यथित करने वाली जो ये घटना हुई है, और निश्चित तौर पर पूरे देश के अंदर इसके प्रति रोष है। और माननीय हमारे गृह मंत्री कल शाम को ही वहाँ चले गए थे। पूरी संवेदनाएं हमारे परिवारों के साथ है, और निश्चित रूप से जिस भी ताकत ने ये करने का काम किया है, जिन्होंने भी किया है, माननीय प्रधानमंत्री जी की तरफ से भी एश्योर कर दिया गया है कि निश्चित रूप से उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। इस हादसे में लेफ्टिनेंट जो थे करनाल के हरियाणा के जवान थे वो भी शहीद हो गए। विनय नरवाल जी, बहुत दुख की बात है कि जिस तरीके से समाचारों से पता चला कि 6 दिन पहले शादी हुई थी और वो अपनी पत्नी के साथ घूमने गए हुए थे, बहुत ही दर्दनाक घटना ये हुई है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय आज से वहाँ जाकर के परिवार को सांत्वना देने का काम करेंगे। हरियाणा सरकार उनके साथ है, और जैसे मैंने कहा कि माननीय प्रधानमंत्री जी की तरफ से, माननीय गृह मंत्री जी की तरफ से बयान आ गया है कि दोषियों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा, सख्त कार्रवाई की जाएगी।